yesterday we were doing about Heisenberg's principle. सर फॉर्मल लिखवाएंगे क्या वापस? Yeah. Heisenberg's uncertainty principle, last of yesterday doing, and that was delta x into delta p is greater than equal to h by 4. This is the formula he gave. The uncertainty in position is delta x. The uncertainty in momentum, that is delta p. The product of these two is always greater than equal to h by 4 pi. This constant value. ये कांस्टेंट वैल्यू से हमेशा ये बड़ा होगा, प्रोडक्ट ऐसे हो जाते हैं। देखिए h by 4 का जो वैल्यू है बार बार हर एक क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, उसने हम पहले से निकाल लेते हैं और यही वैल्यू हर बार इस्तेमाल करेंगे। h by 4 पर ये कांस्टेंट वैल्यू वी फाइंड बिफोर ओनली लिख देते हैं। h by 4 का वैल्यू आप सॉल्व करते हैं, आपको आएगा 5.25 10 to the power -35। इस वैल्यू को याद रखिए, because again and again in every question we are not going to put the value of h and phi and solve it. Before only remember this value. वैल्यू के डिग्री नहीं है। क्या बोले सर 10 रेज़ टू पावर नहीं दिख रही, 10 की 10 to the power -35। थैंक यू सर। Write a question on this. What is the uncertainty in the position of a particle? What is the uncertainty in the position of a particle when the uncertainty in momentum is infinity. Is infinity. Simple the question है. What is the answer for this? आपको दिया डेल्टा p इज इंफिनिटी और डेल्टा x पूछा है ना। we know that what we know, what is the formula? delta x into delta p is equal to h by 4 pi। न्यूमेरिकल्स में हम ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं इक्वल टू लेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू साइन यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको डेल्टा p इंफिनिटी दिया है, क्या मैं इंफिनिटी को 1/0 लिख सकता हूँ क्या? हाँ यस सर, यस सर। अगर 0 अभी इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, पूरा 0 हो जाएगा। 0 into h by 4 pi is Yes, sir. 0, so delta x will be 0. So uncertainty in position delta x is 0 in this question.
Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन दूं, नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. Next question. Calculate सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना सर. done. नो सर. Please write fast. डन सर. Done. Very good. Next question. Calculate the uncertainty in velocity. Uncertainty in velocity of an electron when the uncertainty in the position is hundred angstrom. Very solve. We know delta x into delta p is equal to xy. Delta x यहाँ पे delta p नहीं delta v दिया है. You are given with uncertainty in velocity. Now momentum we know that Mass into velocity. momentum is mass into velocity. So I can write like this: m delta v. Delta v is m delta v because momentum is mass into velocity. So I can write here. What is the value of this? Divided by delta x into m. नीचे आएगा ना? Delta x कितना दिया आपको 100 angstrom. 100 angstrom मतलब 10 to the power minus 10 meter. And what is the mass? किसकी electron बोलेंगे? What is the mass of electron? Correct? Yes, sir. You can solve this. So minus 4. Now what's a minus 6? That's a minus. This is 5.25 upon approximately 960 divided 0.95 is 45. Ten to the power 4. बराबर? Yes, sir. Approximately read this question. किसी कोई शंका इस प्रश्न में या उसके उत्तर में? No, sir. इसमें कोई शंका नहीं. तो शंका नहीं है तो अगला प्रश्न करिए. थोड़ा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन. यू लाइक ट्विस्ट ऐसे आपने कल बोला था. An electron has a velocity
of 50 meter per second accurate up to 99.99%. Calculate the uncertainty in locating its position. Can you find out yourself? Sir, 5.25 into 10 to the power 32. What is the answer? एक मिनट sir. 5.25 into 10 to the power 32. No, dear. Some mistake. Please find out what is mistake. Oh. देखिए यहाँ पे बोला है Sir, electron has a 5.25 into 10 to the velocity. power 31 minus 31. What is the answer? 5.25 into 10 to the power minus 31. Wrong answer, dear. 33 होगा शायद. Wrong answer. वो मैं देख चुका हूँ. भाई बाजियां कौन बेच रहा है अभी? बताऊंगी मैं. 30 minus 30. हाँ, wrong answer. फिर से Good try. यार. क्या बात है? 5.25. Consistently try कर रहे हो. हाँ प्रतीक सही बात है. सर 2 मीटर को ना सॉल्व कर रहे हैं. अरे सॉल्व करो. I'll wait Sir, for a एक बार मेरा minute मैथ की everybody. क्लास में आप सभी ट्राई करिए, उसके बाद बताता हूँ. करिए ट्राई, कोई दिक्कत नहीं. 1 मिनट में कुछ नहीं बोलूंगा. करिए ट्राई. सर एक्सक्यूज मी सर. सर सर आंसर आ गया, बताओ क्या? बताओ. सर कहाँ गए? ये सर है. हाँ सर बोलो आंसर तुम्हारा. ये सर नहीं है. सर मुझे सर को बताना है. हाँ ये बोलो. साहिल है. सर को आने दो, मैं बता देता हूँ. क्या वो बच्चा आंसर आ गया? अभिषेक बहुत खराब एक्टिंग है. क्लास छोड़ के जाओ सर. बताऊं क्या मैं? सर मैं बोल रहा हूँ आंसर आ गया. चेक करने में क्या जाता है? कितना है बताओ? सर 0.11 into 10⁻⁵. क्या?
You are much closer. Your answer is सर much किसमें closer. सर मेरा भी आया है हाँ बताओ. सर 0.05 into 10 raised to power 2 10 to power 2 क्लोजर. तो आप सब बहुत नजदीक हो. ये काम करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, देखिए आपको वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वेलोसिटी. पर मुझे v नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? डेल्टा v चाहिए, है ना? हाँ सर. डेल्टा v कितना है? उसने क्या बोला है? ये वेलोसिटी जो है 99.99% एक्यूरेट है. हाँ. मुझे एक्यूरेट चाहिए. व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा v इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. कितना अनसर्टेन हो चाहिए? जो एक्यूरेट है वो नहीं चाहिए. अगर 99.99% वो एक्यूरेट है, कितना परसेंट अनसर्टेन होगा वो? 0.001. बराबर. यस सर. 100 से माइनस करेंगे उसको हम, तो हाउ मच अनसर्टेन इट विल बी? 0.01 ना? 001 ना. हाँ 010. 0.09 है ना? Yes, sir. 0.01% जो है ये अनसर्टेन है. तो डेल्टा v इज 0.01% ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड. कितना मिलेगा आपको? 0.01 डिवाइड बाय 100 into 50. ये वाला स्टेप किसी को दिक्कत है पूछ सकते हैं आप. यही मेन स्टेप है यहाँ पे. सबको समझा डेल्टा v कैसा है? सर मुझे नहीं समझा. यस, कोई बात नहीं. वेरी गुड. देखो जिसको समझा नहीं है कौन है, नाम बताइए अपना. सर सोहेल. क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? नहीं सर. ध्यान से देखो आप. श्री सांदीपन एकेडमी का जो आईडी रहेगा उसको क्लिक कर दिखा दूंगा मैं. दिख रहा हो ना? नहीं सर. श्री सांदीपन एकेडमी. सर दिख रहे हो? दिख रहा हूँ? नहीं सर नहीं. सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा. दिख रहा है? अरे कहाँ नहीं दिख दिख रहा रहा? क्या बोल रहे हो तुम? अरे पार्टिसिपेंट में जाके चेक करना. हाँ सर अभी दिखा. आप पार्टिसिपेंट में जाइए, श्री सांदीपन एकेडमी के ऊपर क्लिक करिए, मैं दिखा दूंगा आपको. सर दिख रहे हो? जो उस पे स्क्रीन शेयर हो रहा है वो केजीडी का स्क्रीन है, मतलब मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर हो रहा है. अच्छा सर. पर जो एकेडमी का वो आईडी पे आप ऑप्शन है. देखो. हाँ सर, मेरे चैट फेस का देखिए ऑप्शन आप, है. मुझे देख के समझिए. कुछ बातें ऑडियो समझते वीडियो समझ में आता है. कौन थे आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे? सर सोहेल. सोहेल जी. डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स, डेल्टा वी, डेल्टा पी जो हम लिख रहे हैं ना इन हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, उसका मतलब है अनसर्टेनिटी. हाइजेनबर्ग क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट. It is impossible to predict the exact accurate values of the position and momentum simultaneously. Simultaneously एक साथ position, momentum या फिर position और velocity को measure करना possible नहीं है. ठीक है? तो जो डेल्टा x, डेल्टा v, डेल्टा p दिया वो क्या है? वो accuracy नहीं है. कितना accurate नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं. Uncertainty in momentum, uncertainty in position is how much it is not accurate. Is that clear, Sohail? Yes sir. In this particular question, you are given with 99.99%. उसने बोला कि velocity accurate है. 50 मीटर पर सेकेंड velocity है और उसने बोला कि 99.99% accurate है. पर मुझे फॉर्मूला यूज करना कौन सा? मुझे यूज करना है फॉर्मूला लाइक दिस. I have to use the formula delta x into m delta v equal to x by 4 ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मुझे निकालना है अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन दैट इज डेल्टा x. मुझे निकालना है और डेल्टा x निकाल डेल्टा v चाहिए मुझे. डेल्टा x निकालने के लिए डेल्टा v चाहिए. तो डेल्टा v क्या है? अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी एंड कितना एक्यूरेट नहीं है निकालना. अगर मैं बोलता हूं तुम जो है 90% एक्यूरेट हो तो तुम कितना परसेंट एक्यूरेट नहीं हो? सोहेल सर 81. क्या बोल मैं पूछ रहा हूँ
अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यू आर 90% एक्यूरेट, तुम 90% एक्यूरेट हो, तो तुम कितना टक्का एक्यूरेट नहीं हो? 10%। कैसे निकाला? 100 से माइनस के। बराबर। ये सर जो पहले एक्यूरेट मुझे नहीं है 19 नहीं है लगा। बोल रहा हूँ ना, उसी को मैं अनसर्टेनिटी बोलता हूँ टेक्निकली। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ सोइल, तो हम बोलेंगे 10%। अच्छा 90% तो एक्यूरेट है ना, तो उसका अनसर्टेनिटी कितना है? 10%। अगर आपकी आने की संभावना 80% है, तो नहीं आने की संभावना कितना है? 20%। 20। समझ रहे हो? उसी प्रकार सोहेल, उसी प्रकार यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है, मैंने बोला उसका एक्यूरेसी सर्टेन कितना है? कितना सर्टेन है? 99.9%। अनसर्टेन कितना है? 100 से माइनस कर दूंगा, 100 माइनस 99.99 कितना आएगा? 0.01। Is that clear, Sohail? Yes sir. Yeah, thank you. I hope because of Sohail's question और भी बहुत लोग समझ में आ गया होगा। Thank you sir. So this is the uncertainty. इतना परसेंट अनसर्टेन है, कितना परसेंट ऑफ कितना वेलोसिटी हमारा? 50. कितना परसेंट ऑफ 50? How much will get here? 0.05. 5 into 10 to the power minus 3. Yes sir. बराबर? 0.005. Delta V is this much. Yes sir. अब यहाँ पुट करते हैं। Yes sir. अब हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स निकालना है मुझे, है ना? तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा? x by 4 का वैल्यू आप जानते हैं 5.25। अपॉन नीचे क्या m डेल्टा b आएगा, नीचे आएगा m डेल्टा b। This is 5.25 10 to the power minus 35 upon. What is the mass of who is there? Electron. Mass is 9.1 to 10 to the power minus 31. Delta V निकाला हमने, that is 5 to 10 to the power minus 3. So this is 31 और 3 34 हो गया ना, तो -1 बचेगा यहाँ। Yes sir. इसमें डिवाइड करो 5 से 5.05 आएगा। इसके अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 9, इसके अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 1। 0.1 by 9 10 to the power minus 1। Sir 1 by 9 मतलब कितना? 0.11 0.11. 10 to the power minus 1। 1 हाँ. This is 1.1 to 10 to the power minus 2. अच्छा सही किया था, बस पावर में गड़बड़ थी। Excuse me, sir. सबको समझा? Yes sir. Yeah. Please note down. सर नहीं बताइए। सर वो हमारे फॉर्मूला में लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना, तो फिर सही आपने है। इक्वल, तो सही आपने बोला फिर आपने। इक्वल। तो मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में कि दो फॉर्मूला उसने दिया, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, पर न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते वक्त हम इक्वल टू साइन यूज करेंगे। ओके ठीक है ना? फॉर न्यूमेरिकल सेक वी यूज इक्वल टू। ओके सर। सर नोट कर लिया? Yes sir. Yes Yes sir. sir. यस सर। We are moving towards the end of the चैप्टर खत्म हो गया सर? हाँ जी, लास्ट टॉपिक बचा। क्यों? इंटरेस्टिंग था सर, मजा आ रहा था। अभी खत्म हो रहा है सर, बुरा लगा। अरे 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 अरे, कोई दिक्कत नहीं।
साहिल नया ये- चैप्टर भी शुरू होने वाला है। हाँ वेरी गुड। एक पॉजिटिव बात है कि अगर हम शुरू और इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट इक्वेशन इज Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation. इसका बस वेव इक्वेशन आपको लर्न करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इक्वेशन 2-3 टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इट इज एक्चुअली वेरी लेंथी टॉपिक जो हमारे सिलेबस के बाहर, स्कोप के बाहर है, या आपके इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमको 11th के अंदर जो है इक्वेशन दिया हुआ है, जस्ट हमको इक्वेशन लर्न करना है। हाँ भाई ये इक्वेशन है, बिकॉज हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। उसमें से एक श्रोडिंगर भी था जिसने वेव के ऊपर फोकस किया था कि कैसा इलेक्ट्रॉन एज ए वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के उन्होंने जो है स्टडी करके इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल मोशन एक्स वाई और जेड प्लेन में, एक्स वाई और जेड प्लेन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको स्टडी करके उन्होंने इक्वेशन दिया है। उस इक्वेशन को हम लोग कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी इक्वेशन आपके लिए दाएं हाथ क्लियर है, आप तुरंत लर्न कर लेंगे। वो सिंपल इक्वेशन इस प्रकार से है। The simple equation something like this. दो स्क्वायर साई बाय दो एक्स स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर साई बाय दो वाई स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर साई बाय दो जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m by a square e minus b psi equal to 0। ये छोटा सा इक्वेशन श्रोडिंगर ने दिया था। सर श्रोडिंगर ने लेटर ईयर्स में फिजिक्स छोड़ के पेंटिंग शुरू कर दी थी। पर देखो ना, हमको पढ़ना पड़ रहा है उसका इक्वेशन सारे। वो फ्रस्ट्रेट हो गया सर। हाँ वो भी अरे, फ्रस्ट्रेट हो गया। पर हाँ हमारे लिए छोड़े गए ये सब चीजें। हाँ सर, नाइंसाफी है ना। अबे तो गया तो कैसे गया, equation सब बनाया? लोग जाने का ना साथ में। इतना बड़ा इक्वेशन कोई बनाता है क्या? ये तो बहुत छोटा है। इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा इसके बारे में। एक इक्वेशन जो इसने दिया है ना, कुछ इक्वेशन एक पेज के, बाप रे एक पेज 2 पेज के, सर, बहुत फिर सोल्यूशन के लिए पूरी बुक लग जाएगी। अलग से किताब है इसका, बहुत सारी बुक्स है इसके ऊपर। हम बस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बहुत सी किताबें हैं इसके ऊपर, बहुत डीप स्टडी किया उसने से। पर टेंशन नहीं, हमको पढ़ना नहीं उस चीज यहाँ पे, तो इतना सा इक्वेशन लर्न करना है। बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिख लीजिए आप। ये जो ये ऐसे लिखा ना मैंने, ये समथिंग लाइक दिस कॉल्ड एज डो। इसको हम डो बोलेंगे, डो। जैसा आपने मैथ से पढ़ा होगा, आपने मैथ्स वाले बच्चे भी रहेंगे ना कुछ लोग, या बायो वाले भी है, तो आपको फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ यस सर, x raised to n is n into x raised to n minus 1 something डिफरेंशिएशन ना। d by dx मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n with respect to x। यस सर, सबको पता है ना ये बातें? सर, डिफरेंशिएशन या तो आपने फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन एक फंक्शन है, ये जो d by dx है, इसे छोटा y है, इसी का ये छोटा y। जब इसको मैं ऐसे लिख दूं, d जैसे राइट, dy by dx, this is differentiation of y with respect to x। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ d square y by dx, तो इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। यह है डिफरेंशिएशन, यह है डबल डिफरेंशिएशन। जिसको एक बार आप डिफरेंशिएट कर चुके हो, उसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे, उसको तो डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैथ्स है,
आपको समझे तो बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन लर्न करना है, बता रहा हूँ। फिर भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो देख लो इसको। डबल डिफरेंशिएशन, ये डी का ही छोटा भाई डो है, डी का छोटा भाई डो है। डी इज व्हेन डी लिखते हैं ना, उसका मतलब होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन। डी मतलब कंप्लीट डिफरेंशिएशन, जो आपके अभी 11th 12th सिलेबस के अंदर भी रहेगा नेट जेईई के लिए, डिफरेंशियल कैलकुलस। जो डो होता है, डो का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डो मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डो रिफर्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो वापस आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे 11th 12th में नहीं, पर ये डो उसी रिफ्लेक्ट करता है। इट्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई। वो साई जो है, दिस साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए सब बातों को, भूल जाइए, सिंपल सी बात है। इक्वेशन है, इक्वेशन लर्न करिए, और जो टर्म्स डिफरेंट टर्म्स हमने यूज किया उसकी मीनिंग लिखता हूँ, वो लिख कर दीजिए। इक्वेशन में आपने जो यूज किया है ई, ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, m is mass of electron. This psi, this is called as psi, मतलब psi बोलते हैं इसको। This is nothing but this is a wave function। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पहले भी, what is psi करके एग्जाम में आता है। psi refers to, ऑप्शन है psi refers to wave function। psi मतलब होता है wave function। जस्ट psi का और एक मीनिंग होता है, it can also be called as amplitude of electron wave। Psi represents the amplitude of electron wave। You know amplitude, right? Height or depth of, height of the crest or depth of the probe। अगर ये वेव है, इलेक्ट्रॉन का वेव है, तो ये जो है this value is called as amplitude। उस वेव के अंदर जो उसने किया, ये डिफरेंट मीनिंग्स है, इसको याद रखिए बस। तो एक क्वेश्चन इस पे ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ऐसा पूछेगा। तो फिर चार ऑप्शन दिए रहेंगे। व्हाट ही विल डू इज दैट, वो प्लस माइनस चेंज करेगा, जहां प्लस है वहां माइनस डाल देगा, माइनस से प्लस डाल देगा, जहां स्क्वायर है स्क्वायर को निकल क्यूब डाल देगा। ऐसा गड़बड़ी करेगा कंफ्यूज करने के लिए। आपको सही फॉर्मूला के ढूंढना है बस, उसके लिए फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, वो है साई के ऊपर। मैंने बोला साई क्या है, पूछता है साई इज अ वेव फंक्शन, आप बोल सकते, या फिर साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये दो बातें। अगर ऑप्शन दोनों दिया है ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी, अगर है ऐसा ऑप्शन तो ए एंड बी कर लेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है एग्जाम में, दैट इज अबाउट साई स्क्वायर। साई स्क्वायर को हम केमिस्ट्री में ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री में ऑर्बिटल बोलते हैं। स्ट्रोडिंजर उसको क्वांटम मैकेनिक्स में साई स्क्वायर बोलता है। तो साई स्क्वायर बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। एंड व्हाट इज ऑर्बिटल, डेफिनेशन लिखेंगे इससे क्या होगा, the three-dimensional space where the probability of finding electron is maximum is called orbital of the three-dimensional space where the probability of finding electron is maximum is called psi square या orbital, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। Done everybody? Yes sir. किसी को शंका इसमें? सर हाँ बोलो। वो जो डो स्क्वायर साई है ना, हाँ जी, जो अपने फॉर्मूले में लिखा था सर, वो सब कॉमन ले सकते हैं, हम कट कर सकते हैं उसको और सिंपलीफाई। नहीं ना, इग्नोर कर इट, इज अ फंक्शन, फंक्शन को हम कट नहीं कर सकते।
अच्छा सर ठीक। Are you ready for the last topic of this chapter? Yes, Yes, I sir. hope it's the sir. last chapter because probably आपको मैंने बाकी से पढ़ाया है, फिर भी हम देख लेंगे लास्ट में एक बार क्रॉस चेक करके। मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक लिखिए आप नोट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज नोट्स। नोट्स नोट्स नहीं, फिर नोट्स नहीं, नोट्स। अच्छा नोड्स। सर आपने इंजीनियरिंग किधर से की? पर ओके सर। नोट्स what is note? अच्छा, do you know what is ooze? You know ooze? शुगर केन। हाँ, शुगर केन। मराठी में ooze बोलते हैं ना, गन्ना। सर पता है। यस सर पता है। आपको गन्ना पता होगा, तो गन्ना कुछ ऐसा होता है, I don't know, something like this, गन्ना will be. ये गन्ने के बीच में ऐसा कुछ रहता है ना? यस सर। हाँ सर। यस देखा सर। आपने? यस सर। यस सर। ये जो ऐसा कुछ आप देख रहे हो, उस पार्ट में आप रस चूसते हो क्या? आपको sir. रस कहाँ से कहाँ मिलता है? यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। Yes, sir. फिर ये पोर्शन आप छोड़ देते हो, फिर यहाँ से यहाँ तक, बराबर? यस सर। तो गन्ने का वो पोर्शन जहाँ पे आपको गन्ने का रस आपको नहीं मिलता है, रस नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं नोड। वो नोड किसका है? गन्ने का नोड। उस पूरे गन्ने में जहां जिस एरिया में रस मिलने की संभावना ना हो, उसको बोलते हैं नोड उस गन्ने का। उसी प्रकार से एक ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ना हो, उसको बोलते हैं नोड। जैसे पी ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, पी ऑर्बिटल जब ऐसा होता है, यानी ये वाला पोर्शन है, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, उसलिए वहां इंटरसेक्शन है, वहां कोई स्पेस ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ सब जगह मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एंड ये वाला पोर्शन को हम बोलेंगे नोड। जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य हो, उसको बोलते हैं नोड इन द ऑर्बिटल्स। इज माय पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। Please write down definition of node. The space in the orbital where the probability of finding electron is 0 is called node. Is called node. Done, everyone? यस सर। Yes, sir. Nodes are of two types. Nodes are of two types. Radial nodes and angular nodes. Radial nodes and angular nodes.
अगर एग्जाम पूछते हैं कितने रेडियल नोड्स प्रेजेंट इस ऑर्बिटल के अंदर, द फॉर्मूला फॉर रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स इज टू फाइंड रेडियल नोड्स, द फॉर्मूला इज n minus l minus 1. For the angular node it is l. कोई भी ऑर्बिटल में n minus l minus 1 इतने रेडियल नोड्स होते हैं और l एंगुलर नोड्स होते हैं. What are n and l? Quantum numbers. Correct. N is the principal quantum number, L is azimuthal quantum Number. number. Let us see some questions you understand better. अगर मैं पूछता हूँ 5s में कितने रेडियल नोड्स हैं और कितने एंगुलर नोड्स हैं, तो रेडियल नोड्स is n minus l minus 1. 4. What is the value of n here? 5. 5. What is the value of l? S0. s में सबको पता है, सबको याद है ना? Yes sir. यस अगर सर. आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया Yes, था sir. s c d f का l की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3. 3. I hope all of you remember quantum sir. numbers. हाँ सर. So l की वैल्यू 0 माइनस 1 कितना आएगा? 4 आएगा. 4. Yes sir. मतलब 5s के अंदर 4 रेडियल नोड्स होंगे. And how many angular nodes? 0. 0. अगर क्वेश्चन पूछता है टोटल नोड्स कितने हैं, क्या बोलेंगे? 4. 4 plus 0, that is 4. 4. If I have to write the formula of total nodes, अगर मुझे total nodes का formula बनाना है तो क्या बन जाएगा? N minus 1. दोनों ऐड करो, इन दोनों क्या बन जाएगा? n minus 1 मिलेगा. total nodes का formula क्या है? n minus 1 बनेगा. किसी को शंका इस टॉपिक के अंदर विचारो? No sir. No, sir. नहीं, किसको शंका नहीं है नहीं पूछ रही, शंका है पूछ रहा हूँ. किसी को भी एक को भी दिक्कत है तो मैं समझाएंगे, तैयार हो प्लीज. किसी को दिक्कत नहीं है, खुशी हुई. एक प्रश्न मैं दूंगा, आप बताएंगे जवाब. 7f में कितने एंगुलर नोड्स है, कितने रेडियल नोड्स है, टोटल नोड्स कितने हैं? ये बन गया 8. What is the art of 7f? How many angular nodes? 3. Value is l for angular nodes. This is n minus l minus 1. This is n minus 1. What is the value of l here? f मतलब 3. 3. 0 1 2 3. S T D F. How many radial nodes? n minus l minus 1. n is 7 minus l is 2. 3 sir. Radial nodes भी 3. और total 6. 6. Total 6. सगळ्यांना समजलं का? हाँ सर समझ लो. हाँ सर. हो सर समजलं. बर. आता बघा. Everybody please bug here. ये इंग्लिश, मराठी इंग्लिश. अब देखो कुछ क्वेश्चंस को मैं बिना फॉर्मूला में भी कर सकता हूँ. जैसे मैं बता रहा हूँ एडिशनल, ठीक है ना? ऐसे फॉर्मूला याद रख के आप आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. मैं बस थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान जो मेरे पास वो दे रहा हूँ. गरज है तो लेने का, नहीं है तो छोड़ देने का, ये एक्स्ट्रा है. ठीक है? मुद्दे की बात मैं बता दिया, मुद्दे की बात बता चुका हूँ. अगर मुझे कोई पूछता था पहले व्हाट इज हाउ मेनी रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स इन दिस 5p, तो मुझे फॉर्मूला आता नहीं था. जो मेरे समय की बात कर रहा हूँ, जब मैंने ये दिया था, बिकॉज मेरा कोचिंग नहीं था तो मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मैंने भी ज्यादा प्लान किया था. मुझे शेप पता थे. 2p का शेप क्या है? 2p का शेप ऐसा होता है, पता है आपको? Yes, sir. डंबल शेप है ना, p मतलब. Yes sir. Dumbbell. डंबल शेप होता है, 2p होता है. अगर आपको 3p बनाना हो ना, 3p कैसा पता है क्या? 3p समथिंग लाइक दिस. 3p will be like this. This shape of 3p. 2p के ऊपर और एक लेयर बनेगा तो 3p बनेगा. If you want to draw 4p, 4p is like this. This is 2p. This is 3p.
दिस विल बी 4p। आर यू गेटिंग? मैं आपको शेप्स बता रहा हूँ, शेप्स के बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज। शेप्स पे ऐसा होता है, पता है आपको, पता होगा ना ये सब, क्योंकि आप सब फाउंडेशन कर चुके हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट। यस और नो? यस सर। 3 और 4 नहीं पता। हाँ, वैसे ही अगर मैं बोलूं 5p, तो 5p शेप कैसा होगा? ये है 2p, ये है 3p, ये है 4p, एंड दिस विल बी 5p। ठीक है, अब ये शेप को 5p, इसका शेप को देख के मैं नोट्स बारे में बताऊंगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंगुलर नोड। तो यहाँ पे कितना पॉइंट, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। देखो P में वो कोई P क्यों ना, वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, उन सबका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे, तो इसका एंगुलर नोड हमेशा 1 ही होगा। रेडियल नोड्स क्या है? दो पर्टिकुलर जो आपके यहाँ लोब दिख रहे हैं, इन दोनों के जो स्पेस है ना, इस स्पेस को मैं बोलता हूँ रेडियल नोड। along the radius, radial along the radius, this is 1, this is 2, this is 3, the space is this is radial nodes 3 है। Now please apply formula and see the same answer comes out। यस सर, वही आंसर आता है। सेम आंसर आ रहा है? यस सर। सिर्फ ऐसा किसी ने मुझे दिया 10s का रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स पूछा, अब मुझे फॉर्मूला नहीं आता क्योंकि मैं आपको उतना बुद्धिमान नहीं हूं, तो मैंने बोला ये है मेरा 1s। 1s का शेप ऐसा होता है, हम जानते हैं 1s पता है, बाकी बन जाएगा। 2s ये है 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s। अच्छा, यहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका एंगुलर नोड 0 होगा। रेडियल नोड्स कितने देखता हूँ? 1 2 3 9 4 5 6 7 8 9। There are 9 radial nodes। ऐसे ही बताया मैंने एक्स्ट्रा, ऐसा ही आपको फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, सिंपल है। आप में से कोई जे एडवांस वाले हैं क्या? Is anybody preparing for JEE Advanced? यस सर। Yes, sir. Please Yes, raise your sir. hands, please. 1 2 3 4। सर आप तेलुगु में गिन रहे हो? नहीं, तमिल में गिन रहा हूँ, तमिल में। मेरा मदर टंग तेलुगु है, पर मैं गिन रहा हूँ तमिल के अंदर। अरे जी एडवांस वाले बहुत सारे, तो जी एडवांस वाले बच्चे हैं ना, तो आप ध्यान में रखिए। मैं अभी ऐसा कुछ बातें हैं जो सिर्फ एडवांस के अंदर है, मेंस के अंदर नहीं है, और नीट के अंदर भी नहीं है, सीईटी में नहीं है, बिटसेट में भी नहीं है, वीआईटी के अंदर भी नहीं। वो बातें मैं कॉमन डिस्कशन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है ना बाद में एडवांस के कुछ स्मॉल टॉपिक्स एडवांस के हैं जो मैं बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, आप लिख कर नोट्स के अंदर, सर जो है एडवांस का एक टॉपिक बाद में पढ़ाने वाले हैं हमको सेपरेटली इन द फ्यूचर, थोड़ा मेंस का कराने के बाद कॉमन आपको अलग से कराऊंगा। एडवांस स्मॉल टॉपिक है जो हम कराएंगे आपको बाद में, नोट करके लग लेना। तो हमने बाकी सब टॉपिक्स कर लिए हैं क्या? हमने शेप्स पढ़ा, क्वांटम नंबर्स पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, आगे नहीं? यस सर।
डी ब्रॉगली's wavelength, Planck's quantum theory, photoelectric effects, यस सर। Schrodinger wave equation, Heisenberg तो आज पढ़ा। Maths topics हो गए। और कुछ बातें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना MCQs, थोड़ा और भी स्मॉल थिंग्स आएंगे जो हम उस दौरान क्लियर करेंगे, जो नॉर्मल थ्योरी के अंदर उतना मिलता नहीं, पर इन द MCQs we get some other points also जहां मजा एक्सेप्ट करना है तो वहां से हम करेंगे। तो मैं आपको आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है कि मुझे वो शीट सेंड करना है? सर शीट सेंड कर दीजिए। सर शीट सेंड सर करो। शीट ठीक है, सेंड तो मैं ग्रुप में ना सर- इस चैप्टर के ऊपर एक शीट सेंड करता हूं। सर ठीक वैसे है। एनसीईआरटी से हो जाएगा क्या? नहीं, NCERT is not sufficient. ओके सर। NCERT is much lesser than what JEE NEET is. ठीक है, NCERT भी सॉल्व कर सकते हैं बट इट इज नॉट सफिशिएंट। आपको ऐसा लगता है क्या नीट और जी NCERT बेस्ड करके? नहीं सर, मैंने बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए पूछा था। नहीं, NCERT सॉल्व करो ही आप, सॉल्व करो ताकि आप, क्योंकि आप लोग सब मैंने सुना आप केवी और आर्मी के हो ना, यस सर। तो अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो तो फिर आपको तो NCERT करना ही पड़ेगा बोर्ड्स के हिसाब से। तो वो करिए आप। Yes, sir, school में है। NCERT कर लीजिए। NCERT के बाद मैं एक शीट सेंड करूंगा आपको, ठीक है ना? इफ आई डोंट सेंड ना अथर्वा, यस सर। अगर मैं आज रात को 9 बजे तक मैंने सेंड नहीं किया यस सर। तो प्लीज मुझे एक रिमाइंडर देना। सर कौन से नंबर पे? मैं ऐड हूं ना उस ग्रुप के अंदर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ, तो मेरे नंबर पे आप एक रिमाइंडर है सर, आप बोले सेंड करेंगे, बिकॉज़ मैं भूल जाता हूँ। यस सर। बिकॉज़ माय लेक्चर्स एंड एट 8 o'clock, ठीक है ना? 8 तक मेरा लेक्चर से लगा था, तो 8 बजे लेक्चर खत्म होगा मेरा, यस सर। तो 8 से 9 के बीच में सेंड करूंगा, पर नहीं सेंड के 9 बजे तक तो रिमाइंडर देना मुझे। यस सर। ठीक, और सेंड। सर हाँ, बोलिए। सर फिर कोई और रेफरेंस बुक भी लेनी चाहिए क्या केमिस्ट्री के लिए? नहीं, आपको स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ नहीं मिलता क्या आपको क्लास में? सर मिलता है लेकिन अभी लॉकडाउन है ना। हाँ, तो जब स्टडी मटेरियल मिलेगा ना आपको, मतलब कौन सा बुक से करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब आपके जो कोचिंग वाले हैं, मेरे को अधिकार नहीं है बोलने का ऐसा। तो जो आपका कोचिंग आपको रेफरेंस देगा ना, बिकॉज कैसे 2 इयर्स का उन्होंने प्लान किया रहेगा आपके लिए, समझ रहे हो? सो दे हैव सम पर्टिकुलर सिस्टम फॉर यू कि अपने बच्चों कैसे ट्रेन कर कैसे रिजल्ट लेंगे, हर एक कोचिंग का सिस्टम रहता है अपना। तो उन्होंने एक प्लानिंग किया रहेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो प्लानिंग को बिगाड़ूं मेरा स्टाइल बता के। तो मैं फिलहाल के लिए आपके पास कुछ मटेरियल सॉल्विंग के लिए नहीं है, इसलिए मैं एक शीट आपको बना के सेंड करूंगा। आप जो भेज रहे हो सॉल्विंग करिए, बहुत हो जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है ना? आई विल सेंड यू सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड जब भी आपको लगता है ना सर मेरा ये सॉल्विंग हो गया और मुझे चाहिए उस चैप्टर का, तो मुझे आप पूछ सकते हो फॉर केमिस्ट्री। आई विल सेंड यू मोर। ओके सर। कुछ बातें मैं एडिशन करता हूँ जो शायद इस टाइम में हम नहीं कर पाए होंगे, ये समय हमारे पास है, अजीब उजागर है, और समय भी है, सफिशिएंट समय भी है। इसी हमने बात किया था, आपको याद होगा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यस सर। शुरुआत में, है ना? वी टॉक्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। दे एग्जिबिट एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? They exhibit a different electronic configuration expected. They are generally chromium and copper. या पूरा ग्रुप उसका पूरा ग्रुप जो है ना थोड़ा अजीब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। बताओ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम? याद नहीं है? स्कूटी, बीसीआर, मैंगनीज, 24 नीकू, जिंक। दिस इज डी ब्लॉक का पहला सीरीज, इसको बोलते हैं 3D सीरीज।
डी ब्लॉक का पहला सीरीज 3D सीरीज बोलते हैं. दिस इज एटॉमिक नंबर 21 स्टडी तक 21 22 23 24 4 25 26 27 27 28 29 30 स्कूटी वीसीआर मैग्नीज फीको नीकू जिंक. स्कूटी वीसीआर मैग्नीज फीको नीकू जिंक. ठीक है, 21 से लेकर 30 तक. मैंने बोला क्रोमियम के बारे में. As such electronic configuration हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? What should be the electronic configuration of chromium according to us? 1s2, 2s2 2s2, 2p6 EP6 3s2 3d10 नहीं 3p6 सॉरी 3p6 भूल गए क्या electronic सर configuration? 3p6 भूले नहीं ना, याद है ना? सर यस सर हाँ. यस सर. बिकॉज मैं वापस से क्यों ले रहा हूँ इस छोड़ के दिया, बिकॉज जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक टेबल, उसको इससे कनेक्ट करूंगा मैं. ये जहां समाप्त है वहां पे वो शुरू होगा. नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है. तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए होना चाहिए, परंतु नहीं है नहीं होगा. ऐसा होता नहीं ऐसा होता नहीं. फिर क्या होता है? कुछ ऐसा होता है. This something like सर 4s1 3d5 होगा. हाँ, ऐसा होता है. यस सर 4s1 3d5 बट जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 3d5 आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यार 4s2 3d4 होना चाहिए था, पर होता क्या है 4s1 3d5 हो जाता है. अब मुद्दा ये है ऐसा क्यों होता है? सर हाँ फाउंडेशन क्लास में बताया था सर. यस सर क्या बात है, आपने फाउंडेशन की आपको गरज नहीं पड़ी पढ़ाने के लिए ना. कल्पना जी, अब कल्पना जो है बाकी सब बच्चों को समझाएंगी. अच्छा, बाकी सब बच्चों को पता है क्या? एक भी ऐसा कोई इसको पता नहीं है इसका जवाब क्या है? एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन द क्लास हु डजंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. समीर, युगांश, 2 बच्चे, बाकी सबको पता है ना? ग्रेट. और भी हाथ बढ़ो. चलो, इतने लोगों को पता नहीं है. इतने लोगों के लिए हमारी कल्पना आज समझाएंगे आपको. कल्पना जी समझाइए. कल्पना किस कल्पनाओं में खो गई थी? समझाओ. सर सब्स्टिट्यूशन चलेगा? कल्पना का आवाज ऐसा क्यों आ रहा है? लड़कों की तरह क्यों आ रहा है? सर आदमी बोल रहा है, हाँ, प्रतीक बोल रहे सर कल्पना की जगह पे. अच्छा, मैं बोले सवाल वही से बदल गया. अच्छा प्रतीक, कोई बात नहीं. कल्पना शर्मा रही है. प्रतीक तुम बताओ. सर हम लोगों से कहा गया था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, इस वजह से 4s2 की जगह 4s1 हो जाता है और फिर 3d5 को मतलब 3d4 को एक इलेक्ट्रॉन डाल के हाफ फील्ड बना देता है. अच्छा बताओ, हाफ फील्ड स्टेबल क्यों होता है? सर वो हमें नहीं बताया. अब ऐसा मत बोलना, सर ने हमको बोला 11th में सर बताएंगे करके. आपने सही बोला. थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे. जनरली ऐसा ही लिखते हैं हम, यू आर राइट, ऐसा ही बोलते हैं, पर डिटेल में और बात करूंगा मैं. ऐसा भी क्यों होता है? तो इसकी रीजन लिखिए प्लीज. राइट डाउन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. एक काम करते हैं, हम ये क्रोमियम का लिखा, कॉपर का भी देख लेते हैं एक्सेप्शन कैसा है. उसके बाद साथ में इसके रीजन लिखते हैं ऐसा क्यों. दिस इज अबाउट क्रोमियम. यू रिटन डाउन, राइट एवरीबॉडी. सर Similarly, if you see for copper, atomic number 29. 9 1s2 dash 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 dash. The outermost configuration of copper is 3d9
4s2 3d 9 ऐसा होना चाहिए। चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं, तो कैसा होता है? ये होता है ऐसे 4s1 3d 3D 10 ऐसा होता। अब प्रश्न है ऐसा ये उसके जैसे दिख रहा है वो। क्यों? ये क्रोमियम और कॉपर जो है इस प्रकार का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं, ये प्रश्न है। ये लोग एक लाइट दिखाओ पर ये गेम पर भी मत दिखा। कोर के दिन घर को देखो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट। फोटो जिंदा है। वर्ल्ड क्लास गेम है। हर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, वो देखो देखो तो के लोग एक साथ ये दी 3 तू 7 प्रतिरूप नहीं ग जे दुनिया में टोटल है वो है। half filled and fully filled d orbitals are highly stable, are highly stable are highly stable. That is the reason for this ऐसा क्यों? Reason is highly stable because of following reasons. Because of following. इसका रीजन है क्यों वो दिखाते हैं D5 और D10, why not D4? क्योंकि वो बोलते हैं भी ये D9 तो हो गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो D10 हो जाएगा। D10 का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो स्टेबल होने के लिए ऐसा उसने कर दिया, D10 मोस्ट स्टेबल। वैसे ही यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन था पर D5 जो है अधिक स्टेबल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गया, D5 हो गया। अब क्वेश्चन है इनका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण क्या है? ये D5 इनका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कारण क्या? Because of following reasons. The first reason is symmetry. First reason is symmetry. Symmetry के कारण बताइए, एनीथिंग जो सिमेट्रिकल होता है वो स्टेबल होता है, बात सही है गलत है? You see human body also is symmetry in human body. Yes sir. है ना? If you cut it, जो human body है इससे आप कट कर दे सिमेट्री, तो स्टेबिलिटी का एक कारण सिमेट्री भी होता है, जितना सिमेट्रिकल होगा उतना वो स्टेबल होगा। If you see D5 and D10, D5 के अंदर कैसा है इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन से D5 एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा ना, इट इज एग्जैक्टली हाफ फील्ड। या फिर अगर D10 की बात करेंगे, ये पूरा फील्ड है, ये भी सिमेट्रिकल है। थ्रूआउट दिस ऑर्बिटल देयर इज सिमेट्री, यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, द सेम स्पिन, वहां भी सिमेट्री है, यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है। अगर मैं D4 की बात करूं, D4 में क्या होगा, 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, एक में नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल हो गया। So because of symmetry, this D5, D10 as compared to other D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, they have extra stability. There is one reason. Note किया आपने? Yes sir. So because of
this kind of symmetry in D5 D10, they are extra stable as compared to other configurations of D. That's the first point. Second reason for this is exchange energy. Exchange energy. जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं, एक जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है बिकॉज दे हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी सिमेट्रिकल होता है, एनर्जी भी सेम होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, इट कैन मूव हियर, इट कैन मूव हियर, इट कैन मूव हियर एंड वाइस वर्सा. अगर ये इधर जाएगा तो फिर ये इधर आएगा, इधर जाएगा तो फिर ये इधर आएगा, है ना? बिकॉज सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना आपस में जंप करते रहते हैं. ऐसा होता है, देखिए जंपिंग, बिकॉज सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स है, वहां जंप होता है. और ये जो ट्रांजिशन होता है, जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, तो बताओ अगर मान लीजिए आप आदर्श जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? भक्ति, able to hear me? सर कोई जवाब नहीं देने वाला है, आप कंटिन्यू कीजिए. क्यों जवाब नहीं देंगे कोई? आई डोंट नो. ऐसा कोई रूल बना है कोचिंग के अंदर आपके बात नहीं करने का, या फिर आर्मी डिसिप्लिन है क्या? नो सर. या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं क्या? नो सर. फिर ये सब रीजन नहीं है तो क्यों कोई नहीं बोलेगा? सर शर्मा रहे होंगे बोलने के लिए. ये तो नहीं हो सकता है, रॉन्ग आंसर. क्यों सर? शर्माने वाली बात तो आज के बच्चों में तो है ही नहीं भाई. और ऐसे भी शर्माना जहाँ चाहिए वहां चाहिए भाई. मैं तो पूरी कोई इधर शादी करवा रहा हूँ, दूल्हा दुल्हन को बुला रहा हूँ और बातें करने के लिए बोल रहा हूँ आपस में, शर्माने के लिए. ये क्लास चालू है और क्लास में इंटरेक्शन 100% अनिवार्य है, बिकॉज जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको समझेगा और उतना आप टीचर के दिमाग के अंदर बैठोगे. उतना वो टीचर जो है ना, जब भी वो दुआ करता है ना भगवान के सामने, तो आपका नाम याद आता है. 70 का नाम दिमाग के अंदर बैठ गया, 70 खोपड़ी के अंदर बैठ गए, है ना? बैठ गए सर. फिर जब भी जाता हूँ भगवान के पास, के लिए प्रार्थना करता हूँ, थैंक यू अच्छा सर. नंबर मिले. ये फायदा है ना? यस सर. और टीचर की ब्लेसिंग से ही स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं, याद रखना इस बात. सिर्फ टीचिंग से नहीं, मेनी मोर थिंग्स. कोई बात नहीं. मैं क्या बोल रहा था जी? अच्छा, कौन बोलना चाहता है मुझसे? सर शिवम. सर डाउट पूछना था. हाँ शिवम, एक मिनट रुको, मैं आपको समझाने लगा, ठीक है ना? लेट मी प्लस एक्सप्लेन दिस टॉपिक कंप्लीटली, देन यू कैन आस्क डाउट. शिवम. यस सर. अब देखो, अगर मान लीजिए तो अपनी क्लास में एक बेंच से और एक बेंच में उड़ी मार रहे हैं, एक बेंच से और एक बेंच, और एक बेंच से और एक बेंच में उड़ी मार रहे हैं. ये उड़ी मारते वक्त क्या तुम एनर्जी लूज करोगे, गेन करोगे? लूज करूंगा सर. तुम्हारा बॉडी एनर्जी लूज कर रहा है ना. Yes, उसी sir. प्रकार से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ऑर्बिटल से और एक ऑर्बिटल में बार बार जंप मार रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बताओ उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा. घटेगा, बिकॉज Yes. देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है यस ना? सर. वो वर्क करने के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से वहां, उस दौरान कुछ वर्क डन होगा और उस वर्क डन की एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा. तो Yes, ओवरऑल sir. एटम का बोलो, उस पर्टिकुलर जो सबशेल है, डी सबशेल का जितना एक्सचेंज ज्यादा होगा उतना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा,
जितना एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा उतना उस सबशेल का एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा. घटेगा. And what Yes, is sir. the principle of chemistry? Lower is the energy, higher is the Stability. So because of this exchange of electrons here, because symmetrical है, यहाँ बहुत सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है, इतने सारे ऑर्बिटल, जितना ज्यादा सिमेट्री रहेगा उतना अधिक एक्सचेंज होगा. जितना अधिक एक्सचेंज होगा उतना अधिक एक्सचेंज एनर्जी यूज होगा. उतना उस सबशेल का एनर्जी घटेगा. जितना एनर्जी घटेगा उतना स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा. Is my point clear to everybody? Yes, sir. Why D5 D10 are stable? Yes, sir. Can you please write down this exchange energy के बारे में? Please write. When the electrons in the d subshell exchange from one orbital to another orbital, exchange from one orbital to another orbital, one orbital to another orbital, a certain amount of energy is released. 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 This energy is called as exchange energy. This energy is called as exchange energy. This energy is called as exchange energy. Full stop. More is the symmetry of the subshell. More is the symmetry of the subshell. More is the symmetry of the subshell. More are the number of exchanges. More are the number of exchanges. More is the symmetry of the subshell. More are the number of exchanges. Hence, more is the exchange energy, and more is the exchange energy released. More is the exchange energy released. Full stop. Full stop. लिखा आपने? Yes, sir. Full stop. Yes, sir. Yes, sir. This lowers the energy of the subshell and increases the stability. This lowers the energy and increases the stability of the subshell. This lowers the energy and increases the stability of the subshell. Yes. अभी कौन प्रश्न पूछिए आप? Who wanted us question? Sir. हाँ जी, कौन? बोलिए सर, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, तो उसके अंदर भी सर अगर 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन 2p2 में जाए तो जो p वाला शेल है सर हाफ फिल हो जाएगा, तो वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता? वेरी गुड क्वेश्चन होता है. आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, परंतु वहां भी जरूर आपने ऐसे बोला ना, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ने वाला है ना, हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. परंतु ये देखिए, मैं आपको देखिए, ये तो वेग तरह से समझाता हूँ आपको, बिकॉज इसका एग्जैक्ट आंसर साइंटिस्ट के पास भी नहीं है.
ठीक है, समझाऊंगा आपको। The probability of this answer will be something like this. से अभी यहाँ पे 4s में 4s2 3d 4 में से एक रखने आप चला गया है ना, पर आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे 2s2 2p2 में से घट जाना चाहिए ऐसे ही, है ना, सिमिलर वे शुड मूव ऑन यस सर। टू इंक्रीज प्रोबेबिलिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन को बताओ s सबशेल से d में जाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है, 3d का एनर्जी ज्यादा होता है। इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस सर। राइट, तभी मुद्दा ये भी है कि उस एलिमेंट के अंदर उतना पहले से स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मेरे पास उतना पोटेंशियल एनर्जी पहले स्टोर्ड है बॉडी में और अभी आवश्यकता पड़ रही है कि अगर मैं इस स्टेट से उस स्टेट में जाऊं और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो उस एनर्जी को मैं यूज करूंगा, राइट। एटम ने वो एनर्जी को इस्तेमाल करके उस इलेक्ट्रॉन को वहां से वहां शिफ्ट कर दिया, परंतु ये जो बाकी एटम्स है, पी ऑर्बिटल के एटम है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनके अंदर उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। या फिर और एक ये बोल सकता हूं मैं, जो 2s और 2p का डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है। 2s और 2p का डिफरेंस जो होता है ना ज्यादा होता है। डेल्टा ई इज वेरी हाई और 4s और 3d का डेल्टा ई होता है ना डिफरेंस, ये बहुत कम होता है, बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। ठीक है ना, रेड लाइन डिफरेंस का उनका एनर्जी डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस, इसलिए उतना डिफरेंस को उतना एनर्जी उसके पास होता है पहले से एटम के पास, तो आसानी से वो जंप कर पाता है। पर यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, समझ लीजिए ये 2s है, ये 2p, और यहाँ पे कैसा है, ये 3d है, ये 4s और ये 3d। डेल्टा ई बहुत कम है, यहाँ जंप मारना आसान है, ये जंप मारना बहुत ही डिफिकल्ट है। दो मुझे पता है कि वहां जंप करूंगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, पर जंप नहीं हो रहा है मेरे से, उतना एनर्जी मेरे पास नहीं है। Did you get the point? Yes sir. Yeah. Kalpana, you're raising your hand. Please tell. You want to comment something? सर हमें बताया गया था कि मतलब हमें सर ने बोला था कि कार्बन एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज सर क्योंकि थर्ड रिंग तक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए। वेरी गुड, मेरी बात समझ में आई कल्पना? मैंने क्या बोला? यस। जो आपने बोला ना मैंने वही बोला, बस तरीका अलग दोनों का, दोनों मीनिंग एक ही है। ओके सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात था, ये पार्टिसिपेंट्स 28 कैसे हो गए? बहुत कम हो गए, इतना बेकार पढ़ाता हूँ कि मैं? नो सर। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। Yugansh is on PC, so he's not able to interact, not a problem. ओके, ये एक बात थी। उसके बाद मुझे क्या बताना था आपको? फाइन, बाकी हम व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस वी विल कम टू नो मोर अबाउट डिफरेंट, और भी कुछ पढ़ाना है, बीच में कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो विल कम अक्रॉस दिस एमसीक्यूज। आज लास्ट क्लास है क्या हमारा इस वीक का? यस सर। बहुत बुरा लगता है यार टू वेट फॉर 3 days फॉर यू। सर 4 days ना, संडे भी आता है ना? अरे संडे भी आता है, 4 दिन गैप हो जाता है ना। यस सर। आपस से गैप के अंदर भूल मत जाना चीजों को, उसीलिए मैं 4 दिन के हिसाब से क्वेश्चन देता हूँ, ताकि करते रहो, हर दिन सॉल्विंग करो। यस सर। तो फिर आप भूलेंगे नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर या